my dear students and friends. So, welcome to our RSB physics class. So, this is lecture 2 on gravitation for your class 11 NEET and JEE. This is basically theory class. After that, it will be there will be a problem set discussion. Okay. So, let's discuss with gravitational potential energy. Just like your electrostatic potential energy, and so there is also gravitational potential energy. So, how it is defined? So, to work done to bring a mass from infinity to that point, है ना? मतलब ये किसी भी पोजीशन है, दिस इज आर कोऑर्डिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर पोजीशन पे एम मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ से लाने में आपको व्हाट विल बी द work done, basically important. What is the work done? So in gravitation, so there is a gravitational it is under the gravitational field, let's see, there is a bigger mass. Okay, there is a bigger mass m, and this one is a small mass that is at infinity. So it is coming to a near to the bigger mass. So what will be the forces between them? This is the distance r, है ना, between them. So let g m over r square. So for a small distance, this is dr, to bring this mass, what will be the work done? F dr. This is basically small work done equal to, this is vector, है ना, this is scalar quantity. So let's see, g जो है mm dr over r square. Okay. So from infinity to that r point, या that जो है आपका यहाँ पे अगर ये पोजीशन आप ले सकते हो, तो ये जो है आपका ये पोजीशन पे लाने में व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन. सो टोटल वर्क डन, हाउ इट इज वर्क इक्वल टू, सो दिस इज dw, है ना. सो फॉर दिस इज dw मीन्स जो है gmm ओवर जो है आपका जो है r स्क्वायर इंटू dr. फॉर योर टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ g m over r square dr infinity to r point. So this will be g m, है 1 over, ये जो है ये क्या होगा आपका, ये 1 over r square dr जो है ये infinity to r, and ultimately that will be minus g m over r. This is the gravitational potential energy equal to minus. So this is important, minus gm over r square. So let's do a problem. This is a small problem. This is a square of जो है आप radius r, there will be a small mass m. So what will be the potential at the center O? So potential energy, what will be the potential? So there is a individual interaction due to potential. So overall energy will be जो है interaction due to individual. So this is the isolated system, and considering there is no mass present here. But truly there is no isolated system. So there is a planet, galaxies, everything. But for a isolated system, for the sake of solving this problem, है ना? So what will be this combination? So combination will be 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair. So this mass will interact, है ना? So minus जो है g m over r into 4 pair, 1 2 3 4 इंडिविजुअल इंटरेक्शन, है ना, और माइनस जी m ओवर जो है और कितना इंटरेक्शन हो सकते हैं. सो दिस देयर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस वन एंड दिस वन. ओके, नॉट अनदर डायगोनल, जो टू डायगोनल है ना, डायगोनल दिस वन इज √2r, this one is √2r into 2 combination. So this will be the
maximum total potential energy of the system at center O. Total potential energy. Okay, so these types of problem will be coming for your NEET, JEE and competitive exams. Okay, now we will discuss escape velocity, है ना? So what will be the escape velocity? So escape velocity. So if you throw a stone above the sky, so if you stone in the sky, so the stone is coming due to gravitational force. So can you throw in such a velocity that it will escape from the earth, है ना? So this is your earth surface, है ना? So आप यहाँ पे खड़े हैं, so you put a जो है such force so that it will not come to our earth also. So what will be the force and what will be the velocity, so that it will not come back, it will not come back. So what will be the potential here? See, G M, this is a mass of this is a, you are putting a small mass, you are throwing GMM over R, and this is the potential. So now you are putting, so this is a negative energy. So but for escape velocity means there will be no negative, but you are adding half mv square. This is kinetic energy, this is kinetic energy, this is potential energy, so that मिनिमम जो है सिस्टम में आपको मिनिमम जीरो एनर्जी, if it energy of the system is positive, then it will go upward and your जो है overcoming this negative gravitational potential energy. So that, so at minimum मतलब at least आपको जो है इतना एनर्जी देना है half mv square, so that it will total energy will be the zero of this system. Okay, now half mv square equal to g m over जो है r, है ना? So what will be the v? So twice g m over जो है r root over of, है ना? So for your ये जो है for object on staying on this r, that is mg mass equal to how much it is? G mm, this is gravitational force, है ना? This is r square, mm कट गया, so gm equal to g r square. So gm, so velocity will be, this is your escape velocity ve, है ना? So what will be the gm? G r square, so root over of twice g r. So what will be the g? 9.8 and r is 63, जो है नियर अबाउट 6000 किलोमीटर. ओके, सो ये अगर बैठाओगे, सो दैट विल बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. So if you put an object with this velocity ve 11.2 kilometer per second, it will not come back to earth. You can also for your rocket motion and everything, so this there is escape velocity is very much important. But later on I will be describing different types of satellite, geostationary satellite, polar satellite, है ना, GSLV, PSLV. But before that, what will be the I want to discuss what will be the escape velocity for your moon. चंदा में पे क्या है आपका, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहते हैं, सो आपका एस्केप वेलोसिटी जो है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, 2.3 किलोमीटर. सो इसका एस्केप वेलोसिटी काफी कम है, इसलिए चांद पे किसी भी एनवायरमेंट वो एक्चुअली एस्केप होकर चला गया. सो देयर इज नो, जो वातावरण है ही नहीं, सो देयर इज नो एटमोस्फेयर एट जो है मून, सो ड्यू टू lesser gravitational force, and that's why the escape velocity is also less here. So now discuss with the satellite. and अभी जो डिस्कस करेंगे अर्थ सैटेलाइट बेसिकली. सो बेसिकली हम लोग बात करेंगे जीएसएलवी का, जो है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये क्या है, जैसे हम इसरो में बार बार रॉकेट छोड़ते हैं ना, फॉर योर टेलीकम्युनिकेशन. किस लिए यूज होते हैं? टेली कम्युनिकेशन
जो है इनसेट ग्रुप का, इनसेट ग्रुप का जो है सैटेलाइट जो है, और जो टेलीकम्युनिकेशन जो है जियो फिजिक्स के लिए मेट्रियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी है ना। सो बेसिकली जो है वेदर फोरकास्ट के लिए यूज होता है ये जो है ना। सो किस लिए ये टेलीकम्युनिकेशन जो है इनसाइड मेट्रोलॉजी। सो सैटेलाइट को इस तरीके से ये करते हैं। सो अभी पहले सैटेलाइट का ये बात करेंगे है ना। ये सैटेलाइट है, ये आपका अर्थ, और इधर आपका सैटेलाइट है इसमें। सो ये अर्थ से एच हाइट पे है ना, ये अर्थ का रेडियस आर है ना। सो आप इस कंडीशन में ये जो सैटेलाइट इधर घूम रहे हैं ना, सो ये सैटेलाइट ये इधर कैसे घूमेगा। सो व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड जो है इसका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स जो है वो इक्वल होगा। सो यार ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जी एम, और इस सैटेलाइट का मास अगर मान लीजिए एम है ना, एम ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज एम वी स्क्वायर जो है एम वी स्क्वायर ओवर आर क्या होगा, आर प्लस एच। सो व्हाट विल बी द वी, वी विल बी वेलोसिटी विल बी जो है जी एम एम जो है आर प्लस एच रूट ओवर ऑफ दिस वन ना। So gmm over this one जो r plus h. So this will be the velocity. So if your height increases, then if height increases, then velocity decreases. So सैटेलाइट का जो है आप जितना ही हाइट ऊंचा रखेंगे तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएंगे उसमें। जितना वो नजदीक रहेगा, जितना नजदीक रहेगा वो जल्दी जल्दी उसको पास करेगा है ना। So if satellite is near to this earth, then it will moving quicker. Then if satellite is at higher height, then it will move जो है slower. So in this relationship, now what will be the time period है ना। time period equal to twice pi r is r plus h over जो है root over of gm over r plus h. So what will be the root over of twice pi r plus h 3/2 over root over of gm है ना। So this is the time period. So now, so this is the time period. From time period, can you guess something? If you're for नियर अबाउट जो है बहुत ये है। सो अर्थ का जो नियर अबाउट जो है, अगर मान लीजिए अर्थ का रेडियस के रेस्पेक्ट में आर के, सो नियर अबाउट जो है ऑर्बिट, मतलब अर्थ की नजदीक जो ऑर्बिट है उसमें आप एच को जीरो कर सकते हो। सो व्हाट विल बी द टी, टी इक्वल टू ट्वाइस पाई आर टू द पावर 3/2 ओवर रूट ओवर ऑफ जी एम। सो पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है ना। So this is from where you have seen this Kepler's जो है थर्ड लॉ, Kepler's थर्ड लॉ है ना। so इस टाइप से प्रॉब्लम आप हैंडल कर सकते हो। so टाइम पीरियड एंड ऑर्बिट ऑफ दिस जो है ना, so t1 by t2 स्क्वायर इक्वल जो है ये जो है प्रोपोर्शनल टू जो है r1 क्यूब बाई r2 क्यूब, ये है ना। तो दोनों का रेशियो ये लेंगे तो मतलब इसका एक ऑर्बिट आपका दे दिया जो है ये इसमें है ना एक हाइट पे है ना। सो इसमें जो है ये जो है आपका या एच भी पकड़ सकते हो। एच पकड़ के भी आप कर सकते हो इसमें r प्लस एच स्क्वायर जो है इसमें जो है दो ऑर्बिट के लिए, मतलब दो डिफरेंट ऑर्बिट मान ली यहाँ पे बेटा जो है आप स्मॉल r1 इसको ले देते r1 है ना, कंफ्यूज होने के लिए r2 है ना, r1 r2।
so another orbit. So in two orbit है ना, two orbit, this is R2, this is R1. So time period is proportional to time period square proportional to R1 cube. So this is Kepler's law. Now from this time period, where is the time period? This is, I am not erasing this time period. See here what. So this time period is t equal to twice pi r plus h जो है 3/2 है ना, 3/2 this. So from this relationship, so if you for your weather forecast and जो है टेलीकम्युनिकेशन, so मान लीजिए ये आपका अर्थ है, so आपका सैटेलाइट हमेशा यहाँ पे रहना चाहिए, है ना, यहाँ पे इसका मान लीजिए यहाँ पे आपका सैटेलाइट है. So every country has a different satellite for your telecommunication and everything. When you are communicating here and you are seeing here, so this is our India मान लीजिए, है ना, इंडिया का आप यहाँ से, तो सैटेलाइट आपका जो है किसी भी एक पार्टिकुलर पोजीशन पे रहना चाहिए, बट इट इज मूविंग. पर पार्टिकुलर पोजीशन में कैसे रहेगा? अर्थ इज ऑल्सो मूविंग ना, अर्थ इज ऑल्सो मूविंग एंड इट इज ऑल्सो मूविंग. So that this geosynchronous, so earth is moving into one cycle in 24 hours near about, है ना, 24 hours में एक बार राउंड करें. so इसका भी जो है टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड शुड बी 24 hours, so that we can see it is just still, it is just stationary with respect to hours. So when you are moving in two train, है ना, two train is moving, when both of these जो है आपका passengers will see both train are moving, मतलब just still, when both velocity will be this, it is also velocity v, it is velocity v, then passenger of each train will see we are not moving, so we are just stationary. So again Earth is moving 24 hours in जो है इसका one cycle, and its satellite is also have to move जो है आपका 24 hours. So you just put t equal to 24 hours, then height will be here जो है यहाँ से जो है आपका from t equal to 24 hours, है ना, so height will be 35,800 kilometers, so near about 36,000 kilometers. So for your geosynchronous satellite you have to put such a orbit, so यहाँ से यहाँ इतना orbit में आप 36,000 किलोमीटर ऊपर उसको स्टेबल करना है, so that we can see the satellite is just our on our India only. So in this situation, so now this is our Earth, you have to put rocket, है ना, this is your rocket, and its rocket is near about 6,000 ton. 640 ton means 6401 ton means this quintal, this 1 kg, है ना, 1 ton equal to 10 quintal, 1 quintal equal to 100, so this much kg, है ना, this much kg mass it is, and you have to move at least 11.2 kilometer per second so that it will escape. So how much energy it is required, so how much combustion. So ये रॉकेट का प्रिंसिपल तो किए थे ना, VDMDT इक्वल टू जो है इसका जो है UDMDT जो है फोर्स इक्वल टू जो है mg मिनिमम वो होना चाहिए. so उतना कितना कॉम्बसन होना चाहिए, so that V जो है DMDT इक्वल टू जो है इसका mg, ये इक्वेशन किए थे ना. so DMDT इज द रेट ऑफ कॉम्बसन, ये प्रॉब्लम किए थे ना न्यूटन्स मोशन में, ये थोड़ा एक बार देख लीजिए. सो नाउ दिस सैटेलाइट, सो दिस इज जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो एक रॉकेट में इसको सैटेलाइट को चढ़ा के, सो यू आर सेंडिंग टू स्काई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 35,800 किलोमीटर हाइट पे. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना. सो आप इतना हाइट में वो घुमाने के बाद वहां से टेलीकम्युनिकेशंस एंड जो है आपका मेटेरियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स
स्टडी यू कैन डू दैट। एंड आपका वेदर फोरकास्ट के लिए आसान रहेगा। टेलीकम्युनिकेशन हमेशा हमारे फोन, टेलीविजन एक्सेट्रा, फॉर दैट यू नीड स्टेशनरी सैटेलाइट। Stationary requirement is just your at the height of this sound. Okay, now I will be discussing PSLV and etc. Okay, I will be discussing GSLV and PSLV जो है ना, जियोसिंक्रोनस जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड PSLV जो है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो पोलर सैटेलाइट जो है आपका, पोलर सैटेलाइट कैसे, दिस इज योर अर्थ है ना, ये थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा गोला बनाना है ना। सो दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ का जो है दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन है ना। सो योर GSLV जो है मतलब ये जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये इसका इस तरीके से घूमता है। सो दिस इज इन योर दिस सैटेलाइट जो है ये इन द प्लेन अबव द इक्वेटोरियल प्लेन है ना। बट पोलर सैटेलाइट जो है आपका दिस विल रोटेट इन दिस जो है ना, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो दिस इज जो है पोलर सैटेलाइट है ना, PS पोलर सैटेलाइट, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है। दिस इज द डिफरेंस। सो ये जो है आपका GSLV यूज कर टेलीकम्युनिकेशन के लिए है ना, टेलीकम्युनिकेशन, और ये आपका मेट्रियोलॉजी, वेदर मेट्रियोलॉजी जो है ना, मेट्रियोलॉजी आपका है ना। अब आप देखिए इसमें जो है आपका जो है आपका टाइम पीरियड है ना। सो इसमें टाइम पीरियड से 24 आवर्स करने के बाद हमने क्या निकाला, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट जो होगा 85,000 जो है 35,800 किलोमीटर। बट इसके लिए पोलर सैटेलाइट के लिए 500 to 800 किलोमीटर। अब इसके लिए आपका जो है आपका क्या होगा, आपका टाइम पीरियड आपको कितना है, टाइम पीरियड आपने निकाला था ना, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, 2 पाई रूट ओवर ऑफ GM R plus H 3/2। सो दिस वाज द टाइम पीरियड ना। सो व्हेन फॉर ये जो ये बैठा होंगे 800 जो ये बैठा होंगे, उसमें दैट टाइम योर टाइम पीरियड विल बी rotating north south direction will be around 100 minutes है ना। So one rotation of the earth it is taking 100 minutes, but for your geostation satellite it is taking 24 hours, so that we are seeing it is fixed on our जो है ध्रुव तारा जैसी एक जगह में फिक्स है, उसके लिए सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। सो ये जो टोटल वन राउंड 100 मिनट में, 100 मिनट मतलब जो है 24 आवर्स इंटू 60/100 है ना। सो इतना राउंड लगा रहे नंबर ऑफ टर्न पर डे में है ना, पर 24 आवर्स वन डे नाइट में कितना हो रहा है आपका। सो इतना जो है राउंड इतना लगा। सो इतना राउंड लगा रहे, सो यू कैन बी इमेज डिफरेंट एरियाज। सो ये आपका ये डिफरेंट एरिया में आपका वेदर का जो है कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, ये आप पूरा टोटल ओवर ऑल ओवर जो है वर्ल्ड आप ये कर सकते हो। और सभी जगह का जो है कैमरा, यहाँ पे इसमें कैमरा लगा हुआ रहता है, सभी जगह का फोटो आप आराम से निकाल सकते हो। सो दैट वेदर इट इज देयर क्लाउड और साइनी कंडीशन, सन साइनिंग कंडीशन, तो ये डिटरमाइन कर सकते हो। इसलिए मेट्रोलॉजी केस में ये जो है पोलर सैटेलाइट यूज करते हैं। ओके, सो नाउ देयर इज 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रेडियो कम्युनिकेशन और जो है आपका टेलीकम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन और जो है टीवी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन क्या है, अपना ये जो है अपना अर्थ से ये आयनोस्फीयर जो है आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आता है। सो ये जो है 2 जो है 10 मेगाहर्ट्ज में यूज होती है लगभग है ना, इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। बट सैटेलाइट और टीवी ये जो है 35 मतलब बहुत ऊंचा तक जाता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है आपका ये कम्युनिकेशन करता है, टीवी कम्युनिकेशन। बट इसका कम्युनिकेशन है रेडियो का लोकल रीजन में कॉन्फाइंड है, क्योंकि इसके आयनोस्फीयर से जो है आपको रिफ्लेक्ट होके आता है, वही उससे
यूज करते हैं, है ना। सो ये रेडियो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस, सो फॉर योर सेक ऑफ योर कंप्लीट नॉलेज, है ना, एवरीथिंग। सो नाउ व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट? टोटल एनर्जी कितना सैटेलाइट का कितना है? सैटेलाइट घूम रहे हैं ना, सो टोटल एनर्जी आप निकाल लीजिए। सो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी? सो एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट कितना एनर्जी होगा? टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? सो दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर सैटेलाइट एट हाइट h, है ना। सो ये टोटल का एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका? Gm ओवर r प्लस h, है ना। अब mv जो है यहाँ पे क्या होगा आपका? Gm बाई r प्लस h स्क्वायर, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mv² ओवर r, mv² ओवर r जो है r प्लस h, है ना। mv² ओवर r ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो है यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट विल बी सेम, तभी तो ये घूमता है ना। सो आपका जो है यहाँ पे हाफ mv² इक्वल टू, ये आप यहाँ पे mv² इक्वल टू कितना है? mv² इक्वल टू नाउ Gm ओवर r प्लस h, है ना। सो हाफ mv² इक्वल टू जो है हाफ जो है Gm ओवर r प्लस h माइनस जो है G टोटल E, है ना, माइनस Gm ओवर r प्लस h। सो दिस मच विल, ये हाफ इसमें तो माइनस रहेगा ना हाफ, सो माइनस हाफ Gm ओवर जो है ट्वाइस जो है नीचे हाफ रहेगा r प्लस h। सो दिस इज योर एनर्जी ऑफ इस टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। So what is showing? Negative. So negative energy showing that it will not escape. It will be bound system. So आपका ये सैटेलाइट घूमते रहेगा, है ना, ये सैटेलाइट घूमते रहेगा। So this is a bound system. जैसे संसार में लोग रहते हैं ना, संसार में लोग बाउंड होकर रहते हैं, तो उसका एनर्जी नेगेटिव, जो साधु लोग हैं उनका पॉजिटिव एनर्जी, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये करते हैं। सो टोटल एनर्जी, सो आप इसमें जो है एटॉमिक फिजिक्स में भी देखेंगे, जो है इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। तो ये एटॉम आपका है ना, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी देखोगे नेगेटिव, बिकॉज ऑफ दिस बाउंड सिस्टम टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव। अब एनर्जी जीरो मीन्स इट विल एस्केप फ्रॉम द सिस्टम, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो वहां से ऑर्बिट से वो निकल जाएगा, है ना। तो ये है, तो सैटेलाइट को आप थोड़ा सा जैसे एनर्जी देंगे वो एस्केप कर जाएगा वहां से, इट विल गो टू इंफिनिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, बाउंड सिस्टम एंड एस्केप वेलोसिटी एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द थ्योरी क्लास, ओके। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन आई हैव रिटन एंड डोंट जस्ट मार्क अप, आप उसको एक बार समझ लीजिए, है ना। आप पढ़ने के बाद आपको जो है आराम से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम यू कैन हैंडल। So next class will be for your problem set discussion. Okay, पढ़ते रहिए, थैंक यू।